بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امی دیکھیں سنی بھائی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ جاریہ بھاگ رہی تھی اور سنی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ بھائی میں کہہ رہی ہوں رک جائیں ورنہ ابو کو شکایت لگا دوں گی، پھر آپ کو امی بھی نہیں بچا پائیں گی۔ پہلی بات ابو اس وقت گھر میں نہیں ہیں، اور دوسری بات مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا، اور رہی بات شکایت کی تو وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ جاریہ وہ دیکھو تمہارے پیچھے کوئی ہے۔ کون ہے بھائی؟ مجھے پتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیلوں گی، آج ہی تو چھٹی ملی ہے، اور وہ بھی فضول کی گیمز میں ویسٹ نہیں کروں گی۔ تم میری فیورٹ گیمز کو فضول کہہ رہی ہو، ایک بار پھر سوچ لو، نیکسٹ ٹائم میں تمہیں نہیں کھیلنے دوں گا، یاد رکھنا۔ اور چیٹنگ تم خود کر رہی تھی، جب تمہیں لگا تم ہار رہی ہو تو گیم وہی ختم کر کے بگاڑ کر بھاگ گئی ہو۔ جاؤ اب میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ سنی بھائی بات تو سنیں۔ اچھا نا سوری، مگر وہ ناراض بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم میں جاریہ کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ پھر سنی جلدی سے اپنی ناراضگی بھلائے بھاگ کر اپنی جان سے پیاری بہن کے پاس جاتا ہے۔ جاریہ دیکھو تو میں بالکل بھی ناراض نہیں، چلو اب رونا بند کرو، تم جانتی ہو تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، پلیز۔ پہلے آپ کان پکڑ کر سوری کریں، پھر معاف کرتا ہے یا نہیں یہ میں بعد میں سوچوں گی۔ پھر سنی ناراض سی شکل بنا کر کہتا اب کہ اچھا لگے گا، تمہارا بڑا بھائی ہوں اور کان پکڑ کر معافی مانگوں۔ پھر جب جاریہ اسے گھورتی ہے اور منہ پھلا لیتی ہے تو سنی بیچارہ ہار مانتے ہوئے کہتا ہے اچھا سوری، دیکھو تو کان پکڑ کر معافی مانگ رہا ہوں، ناراض تو نہ ہو۔ پھر وہ مسکرا کر اپنے بھائی کے کندھے پر سر رکھتی ہے، جس کا مطلب تھا وہ ناراض نہیں ہے۔ ویسے جاریہ یہ غلط ہے، غلطی بھی تمہاری تھی اور ناراض بھی تم ہو گئی، معافی بھی مجھے مانگنی پڑی۔ یہ اس صدی کا سب سے بڑا ظلم ہے جو میری بہن نے مجھ معصوم مظلوم انسان سنی دی گریڈ پر کیا ہے۔ سنی کا لہجہ ایسا تھا کہ کوئی بھی یقین کر سکتا تھا کہ اس پر ہی ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ اوہ تو اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے معافی مانگوں، ٹھیک ہے مانگ لیتی ہوں، مگر میں آپ کو شرمندہ نہیں کر سکتی نا بھائی۔ تو سنی کہنا ہاں یہ تو سچ ہے مائی ڈیئر سسٹر، اور پھر اس بات پر دونوں ہی ہنستے ہیں۔ تبھی بیل بجتی ہے اور شاید نہیں یقیناً جاریہ کی سہیلیاں ہی تھیں جو بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گئی تھیں۔ تو سنی بدمزہ ہو کے کہتا ہے جاؤ آفت کی پرکالہ آ چکی ہیں۔ بھائی ایسے تو نہ کہیں، مناہل کبھی تو صبر سے کام لے لیا کرو، آ تو گئی ہو، حد ہے پھر بھی ڈور بیل بجائے جا رہی ہو۔ جاریہ نے بھی جاتے ہی سب سے پہلے مناہل کی کلاس لی۔ او میری خوبصورت سی پری، ناراضگی ہوتی ہو، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، بس آج آخری بار۔ ہاں پتہ نہیں تمہارا آخری بار کب آئے گا۔ نادیہ اس پر طنز کرتی ہے چلو اب اندر چلو، باقی کے طنز بعد میں کر لینا۔ جاریہ دیکھو نادیہ مجھے کیا کہہ رہی ہے، آپس کرو تم دونوں، ہر وقت لڑتی رہتی ہو۔ اب ساری سہیلیاں جاریہ کے روم میں بیٹھی تھی اور ان سب کے لیے کھانے کو بہت ساری چیزیں لے کر جا رہی تھی۔ جب اچانک اس کی نظر سنی پر جاتی ہے تو پوچھتی ہے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میرے دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے پاس جا رہا ہوں، جب تمہاری فرینڈز جانے والی ہوں مجھے ٹیکسٹ کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ اوکے بائے۔ بائے، فی امان اللہ۔ اب سب فرینڈز مووی بھی دیکھ رہی تھیں اور ساتھ کچھ نہ کچھ کھا بھی رہی تھیں۔ بیچاری جاریہ زبردستی مووی دیکھ رہی تھی۔ یار اپنا موڈ ٹھیک کرو، کتنی اچھی تو مووی ہے، تم کتنی بور ہو، مجھے تو لگتا ہے تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جسے رومانٹک موویز دیکھنا پسند نہیں۔ مناہل اب اسے ڈانٹ رہی تھی، دیکھ تو رہی ہوں، اب کیا زبردستی مسکراؤں، مجھ سے نہیں ہوگا، کتنا ٹائم لگے گا، یہ مووی کب ختم ہوگی؟ جاریہ غصے سے کہتی ہے، اور پھر جب مووی اینڈ ہوتی ہے تو وہ تینوں ٹیرس پر چائے کے مگ تھامے جاتی ہیں اور ساتھ میں وہ مووی بھی ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں۔ یار کتنے مزے کی تھی وہ مووی، اینڈ بھی کمال کیا، ویسے یہ پہلی مووی تھی جس میں ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے، ورنہ تو یہ میڈم بورنگ موویز دکھاتی ہے۔ مناہل کا اشارہ جاریہ کی طرف تھا۔ وہ تینوں فرینڈز چھت پر بیٹھ کر کسی انڈین مووی کو ڈسکس کر رہی تھی۔ چلو یار ہم بھی منتر پڑھ کر شادی کا سین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے مناہل نے اس سرمئی آنکھوں والی بہت ہی پیاری پرسنجیدہ رہنے والی لڑکی جاریہ سے کہا، جو ہمیشہ اپنی چنچل سی دوستوں کو بورنگ موویز دکھاتی تھی۔
पर आज इन दोनों के इंसिस्ट करने पर इस सुरमई आंखों वाली डॉल ने रोमांटिक मूवी देखी। हालांकि इसे ऐसी मूवीज़ हरगिज़ पसंद नहीं थी। चलो ना यार, हम भी बिल्कुल वैसे मंत्र पढ़कर शादी का सीन क्रिएट करते हैं। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसा कुछ करने का। वही सुरमई आंखों वाली लड़की जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा हसीन थी, वो इस ड्रामे के लिए इनकार कर देती है। अरे यार, हम कौन सा सच में शादी कर रहे हैं, प्लीज़ मान जाओ। ओके, पर थोड़ी देर। हाँ, आखिर जारिया अपनी पागल दोस्तों की मान मान जाती है। चलो तुम आग जलाओ। इसकी एक सहेली जो बहुत एक्साइटेड थी आग जलाने और मंत्र पढ़ने की जिम्मेदारी इसकी थी। गाइस, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है। वही शर्मीली आंखों वाली लड़की अपनी दोस्तों से कहती है, अरे कुछ नहीं होगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। फिर वो जैसे मूवी में देखा था वैसे ही आग जलाती है और दुपट्टा बांधती है। अभी वो मंत्र पढ़ने लगी थी, तभी लोग वहाँ से एक जिन गुजर रहा था। वो इस हसीन लड़की के हुस्न में खो गया था। बेख्तियार इसके मुंह से निकलता है, जमाल। वो जिन अपनी मस्ती में जा रहा था, इस हसीन लड़की यानी जारिया को देखकर हैरान रह गया। अभी वो इसके हुस्न से बाहर ही नहीं आया था कि वह दोनों आग जला रही, जो बुझ गई। लेकिन इसके आने से जो आग बुझ गई थी वो फिर से जलती है और वो इनकी तरफ मुतवज्जा होता है। हम तो ये मजाक में शादी का एडवेंचर कर रही हैं, तो क्यों ना इस शादी को जो ये मजाक में कर रही हैं असल में शादी हो जाए तो क्या हर्ज है। वैसे भी ये मुझे पसंद आ गई तो अब से मेरी हुई। फिर वो इस लड़की के साथ जो इसकी दोस्त थी मतलब नादिया की जगह खुद आ जाता है और पूरे 7 फेरे लेकर शादी मुकम्मल करता है और जारिया की मांग में सिंदूर भरता है। इसकी सहेलियां हैरान परेशान होकर सारी कार्रवाई देख रही क्योंकि ये सब वो अनजानी कुव्वत इनसे सब करवा रही थी। थोड़ी देर बाद वो असर जैसे ही ख़त्म होता है तो वो लड़की होश में आती है, तभी इसके कान में आवाज़ गूंजती है। वही जिन अरबी में इसके कान में सरगोशी करता है। फिर वो एक बार फिर उर्दू में इसके कान की लू बड़ी नरमाहट से छूते हुए कहता है, अब से तुम मेरी बीवी हो। इस सरमई आंखों वाली लड़की ने बेहोश होने से पहले ये अल्फाज सुने थे, तो वो जैसे ही बेहोश है इसकी फ्रेंड्स भागकर इसके पास जाती हैं। क्या वो जिनज़ादा सच में इसे अपनी बीवी मान चुका था? जानिया की ज़िंदगी इसकी फ्रेंड्स ही अब मुश्किलात का शिकार होने वाली थी, तो अब इसकी ज़िंदगी में क्या नया होगा? जारिया सनी जो घर दाखिल हुआ था इसकी दोस्त की आवाज़ सुनकर भागकर छत की तरफ जाता है। जारिया, क्या हुआ है मेरी बहन को? ज़रूर तुम दोनों ने कुछ किया होगा, सनी चिल्लाकर कहता है। वो जारिया के गाल थपथपा रहा था और मिनाल पर नादिया को डांट भी रहा था। जाओ पानी लेकर आओ, जाओ जल्दी। फिर मनाहिल जल्दी से भाग कर जाती और पानी लेकर आती है। फिर सनी जल्दी से जारिया को मुंह पर पानी डालता है। जैसे ही पानी के कतरे इसके चेहरे पर पड़ने वो आहिस्ता से होश में आती है। शुक्र है जारिया मेरी बहन, तुम्हें होश तो आया, मेरी तो जान पे बन गई थी। क्या किया है तो इन दोनों ने कि तुम बेहोश हो गई? कुछ गलत खिला दिया होगा, बताओ मुझे, मैं इन दोनों को यही छोड़ूंगा। सनी गुस्से से मिनाहल और नादिया की तरफ देखता है। कुछ नहीं किया भाई, आप तो खाम खाई इन्हें डांट रहे हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो बस चक्कर आ गए। वह दोनों जो सनी के गुस्से करने पर डरी हुई थी, जारिया की गवाही देने पर सुकून का सांस भरती हैं, वरना आज तो सनी ने इन दोनों को नहीं बख्शना था। अच्छा, अब रूम में चलो, तुम दोनों सीधी घर जाओ। मजाल है जब तुम दोनों आओ और कुछ गलत ना हो। हाँ भाई, हम जा रहे हैं, मिनाहल जल्दी से बोलती है और फिर जारिया को रूम में पहुंचाने के बाद घर चली जाती है। रूम में जाते ही जारिया सनी से पूछती है, अम्मी अबू अभी तक क्यों नहीं आए? आप कॉल करके पता करें ना भाई, बस आने वाले हैं। जब तक तुम जूस पियो, देखो तो कितना जर्द रंग हो गया तुम्हारा। सनी फिक्र करते हुए जारिया से कहता है, तभी डोर नॉक होती है। लगता है आगे हैं। भाई प्लीज़ अम्मी अबू को मत बताइएगा कि मैं बेहोश हो गई थी, वो परेशान हो जाएंगे। ओके, अब तुम रेस्ट करो, वरना दरवाज़ा देर से खोलने पर मुझे ही डांट पड़ेगी। घर आते ही जारिया के अब्बू अपनी प्यारी बेटी के बारे में पूछते हैं, जारिया कहाँ है सनी? और अभी सनी जवाब देता, जारिया खुद भागकर अपने अब्बू के गले लगती है और कहती है, अब्बू मैं यहाँ हूँ, मेरी बच्ची मैं बहुत मिस कर रहा था, तुम्हारी अम्मी ने देर करवा दी।
पता नहीं कौन सी ऐसी बातें थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर जारिया की अम्मी तिरछी नज़रों करके गुस्से से जवाब देती हैं, आप भी खुद देर करवाते हैं और इल्ज़ाम मुझ पर लगाते हैं। अच्छा अम्मी बताएं, आपकी खाला की तबीयत अब कैसी है? अब काफ़ी बेहतर है, वो तुम्हारा भी पूछ रही थी। और फिर काफ़ी देर तक वो सब बातें करते रहते हैं। रात का खाना खाने के बाद जारिया अपने रूम में आती हैं। बेड पर लेटते ही आज का वाक़या याद करती है और इसके कान के नज़दीक आवाज़ गूंजती है, जमाल। पहले वो इग्नोर करती है मगर एक बार फिर से वही आवाज़ आती है। इस बार लहजे में सख्ती थी। अंदर ही अंदर वो घबरा रही थी मगर फिर वो अपना वहम समझकर झटक देती है, जमाल। इस बार सरगोशी ऐसी पुरस्कार और डरावनी थी कि वो डर जाती है क्योंकि रूम में जो साइड लैंप था वो भी बंद हो जाता है। फिर वो डर के मारे पूछती है, कौन है? वो जो कोई भी बात कर रहा था, इसके लहजे के साथ साथ इसकी जारिया के बाजुओं पर भी गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। जारिया को कोई भी नजर नहीं आ रहा था मगर वो डर इस बात से रही थी कि इसके बाजुओं को किसने पकड़ा हुआ था और वो क्यों नजर नहीं आ रहा था। खौफ से इसका पूरा वजूद कांप रहा था और वो बेबस थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तकलीफ की वजह से इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बार बार अपने बाजू को देख रही थी मगर वो जिन तो बस इसे देख रहा था। फिर इसे जैसे इस पर तरस आ जाता है और फिर वो इसके कान की लूप को हल्के से छूता है और साथ में इसे कहता है, शब्बा खैर। इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। इसके जाते ही कमरे में रोशनी हो जाती है और जारिया बेचारी की सारी रात खौफ की वजह से जागते हुए गुजरती है। सुबह जब सनी जारिया को डाइनिंग टेबल पर नहीं देखता तो अपनी अम्मी से पूछता है, अम्मी जारिया कहाँ है? पता नहीं, देखती हूँ अभी तक क्यों नहीं आ जागी। कॉलेज नहीं जाना कैसे? आप रहने दें, मैं देखता हूँ। फिर जब सनी जारिया के रूम में जाता है तो पूछता है, जारिया तुम अभी तक सो रही हो? चलो उठो, तुम्हें पता तो है अब्बू तुम्हारे साथ नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। वो इसका कंबल इसके चेहरे से हटाता है मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। सनी जैसे ही इसके बाजू को हाथ लगाता है, इसे लगता है जैसे इसे आग को छू लिया हो। ओह माय गॉड, इसे तो तेज़ बुखार है। सनी, तुम्हें बहन को बुलाने भेजा था और तुम वहाँ जाकर बैठ गए हो। जारिया की अम्मी रूम में आते ही सनी पर को डांटने लगी। अम्मी देखे तो जारिया को बुखार है, हमें इसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। अचानक कैसे बुखार आ गया? रात को तो बिल्कुल ठीक थी। सनी, अम्मी अब्बू बुला रहे हैं, आप नीचे जाएं, मैं जारिया को लेकर आता हूँ। जारिया, क्या हुआ है मेरी बेटी को? पता नहीं, बहुत तेज़ बुखार है। अब वो भी डॉक्टर के पास चले हैं। फिर वो जैसे ही अस्पताल जाते हैं तो इसका चेकअप होता है। तो जारिया के अब्बू डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर क्या हुआ है मेरी बेटी को? परेशानी की कोई बात नहीं, बस तेज़ बुखार की वजह से बेहोश हो गई हैं और कुछ नहीं, ये दवाइयाँ आप बाकायदगी से कुछ दिन खिलाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ड्रिप ख़त्म होने के बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। वो जारिया को घर ले आते हैं। जब इसे होश आ जाता है, इसके अब्बू को जब तसल्ली होती है कि वह कुछ ठीक है तो फिर ऑफिस चले जाते हैं और सनी यूनिवर्सिटी चला जाता है। सारा दिन वो खामोश रहती है। सनी इसके रूम में आता है। वो जो भी बात कर रहा था वो गायब दिमागी से सुन रही थी। जारिया, जारिया, वो जो गुमसुम बैठी थी बोल पड़ती है, क्या हुआ है? तुम बोल क्यों नहीं रही? कुछ भी तो नहीं हुआ भाई, मुझे नींद आई है। ओके, तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। सनी के जाने के बाद वो सोने के लिए लेटती और इसे महसूस होता है कोई इसके बालों में उंगलियां चला रहा है। वो डर की वजह से चीखना चाहती थी मगर इसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ब्यूटी, तुम बहुत डरपोक हो। मेरे डर की वजह से तुम तो बीमार ही हो गई। तुम तो। स्टोरी अभी जारी है। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर जल्द हाजिर हूँ। शुक्रिया।